کہ یہودیوں کے راہبوں، عالموں، کاہنوں، نجومیوں نے آپ کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہے۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد دوستو السلام علیکم، مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اس سیریز کا پارٹ نمبر 8 یعنی حصہ نمبر 8 کو شروع کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کیجئے، پورا دیکھیے، کیونکہ حالات زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اسی لیے سننا، سمجھنا، جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پارٹ 8 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 7ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 7ویں حصے میں سنا کہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب نے سنبھالا، ان کا خیال رکھا۔ دادا اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ اس کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے کہ یہودیوں کے راہبوں، عالموں، کاہنوں، نجومیوں نے آپ کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہے۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ابو طالب کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ چچا ابو طالب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے آپ کو 4 سال بیت گئے تھے۔ اب آپ کی عمر 12 سال ہو گئی تھی۔ آپ ایک خوبصورت نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ اس تھوڑی سی عمر میں ہی آپ کی ہر بات ایسی تھی جسے سب دیکھ کر تعجب کرتے تھے اور آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی چال ڈھال اور آپ کے طریقے ہی ایسے تھے جیسے بڑی عمر والوں کے ہوتے ہیں، تجربے کار لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جب کہیں بچے کھیلتے تو آپ بھی وہاں موجود ہوتے، مگر آپ ساتھ نہیں کھیلتے تھے بلکہ دور سے دیکھتے رہتے تھے۔ اس عمر سے ہی آپ کی عادت تھی کہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے تھے، تنہائی میں زیادہ بیٹھتے تھے، نہ کبھی کسی سے لڑتے تھے، نہ کبھی کسی کو برا کہتے تھے۔ چچا ابو طالب جب آپ کی سب باتیں اور آپ کی عادتیں دیکھتے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اب چچا ابو طالب جب بھی آپ سے بات کرتے تو اس طرح بات نہیں کرتے جیسے عام بچوں سے بات کی جاتی ہے، بلکہ اس طرح بات کرتے جیسے بڑے اور تجربے کار آدمی سے بات کی جاتی ہے۔ اسی زمانے میں ایک دفعہ چچا ابو طالب کو شام کا سفر پیش آیا۔ وہ تجارت کے لیے ایک قافلہ لے جا رہے تھے۔ جب قافلے کے جانے کا اور چلنے کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلنے کا آپ نے ارادہ ظاہر کیا۔ چچا ابو طالب انکار نہیں کر سکے اور تیار ہو گئے اور آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ مبارک قافلہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، مکہ سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں یہ قافلہ کئی جگہ ٹھہرتا، آگے بڑھتا، یہاں تک کہ ایک دن یہ قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ شام کی سرحد پر ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا۔ قریش کے قافلے اکثر وہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس قافلے نے بھی وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جس جگہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا بالکل اس کے سامنے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے مذہبی پیشوا، رہنما، عالم رہا کرتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ قریش کے قافلے اکثر اسی گرجا گھر کے سامنے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، لیکن کبھی بحیرہ راہب نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، نہ کبھی ان کو پوچھا۔ لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ جب قافلے والے سستا رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اچانک گرجا گھر سے ایک قاصد آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس قاصد نے قریب آ کر کہا کہ مجھے آپ کی طرف بحیرہ راہب نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ
कि आज पूरे काफले वालों को हमारी तरफ से खाने की दावत है, मगर शर्त यह है कि पूरे काफले वाले सबको दावत है और सब के सब दावत में आए, कोई बचने ना पाए। काफले वालों को और कुरैशियों को बुहैरा राहिब की इस दावत पर बड़ी हैरानी हुई, इसलिए कि वो हमेशा इस जगह ठहरते थे, पड़ाव डालते थे, मगर कभी दावत तो क्या हालचाल भी नहीं पूछा गया, और आज सीधे खाने की दावत। आज ऐसी क्या खास बात हो गई? बहरहाल काफले वाले यही सोचते हुए और सोचते ही रह गए कि खाने की दावत का वक्त हो गया। सारे काफले वाले बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में पहुंच गए, मगर इन काफले वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ाव की जगह पर ही छोड़ दिया, ये सोच करके आप बच्चे हैं, आपको साथ ले जाना कोई जरूरी नहीं है। जब ये लोग बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में, उस गिरजाघर में पहुंचे, तो एक कुरैशी ने बुहैरा राहिब से पूछा कि आज हमने एक नई बात देखी है, हम तो यहां अक्सर आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, पड़ाव डालते रहते हैं, लेकिन कभी आपने दावत नहीं की, तो फिर आज कैसे और क्यों? बुहैरा राहिब ने बात को टालने के लिए कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, मगर आप लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे पड़ोस में ठहरे हैं, तो हमारा मेहमान नवाजी का हक बनता है, इसलिए आपको दावत की है, और कोई बात नहीं है। लेकिन असली बात ये थी, दरअसल बुहैरा राहिब ने अपनी आसमानी किताबों में, अपनी मजहबी किताबों में पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के आने की बहुत सारी निशानियां उनके दिमागों में थी, उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था। इसलिए बुहैरा राहिब जानते थे कि इस दुनिया में इस वक्त आखिरी उम्मत के आखिरी नबी आने वाले हैं। हुआ यह था कि इस दफा जब कुरैश का काफला यहां आकर ठहरा, तो बुहैरा राहिब ने देखा था कि एक बादल का टुकड़ा इस काफले के ऊपर साया किए हुए साथ साथ चल रहा है। जहां काफला रुक जाता, बादल भी रुक जाता, और जब चलने लगते तो बादल भी चलने लगता। फिर बुहैरा राहिब ने यह भी देखा था कि एक नौजवान जब काफले से अलग हुआ तो बादल भी अलग हो गया और उस नौजवान पर साया करने लगा। जब वो नौजवान दरख्त के नीचे जाकर बैठा तो वो बादल दरख्त के ऊपर भी आकर साया करने लग गया। चूंकि बुहैरा राहिब ने किताबों में पढ़ा था कि जब आखिरी नबी इस जमीन पर आएंगे तो बादल उन पर साया किए हुए होगा, इसलिए बुहैरा राहिब ने अपने इत्मीनान के लिए पूरे काफले को दावत की थी ताकि वह आखिरी रसूल को करीब से देखे और पहचाने। चुनांचे जब काफला उनके गिरजाघर में आया तो बुहैरा राहिब ने काफले के हर आदमी पर गहरी निगाह डाली और गौर से देखा और घूर घूर के देखने लगा, मगर किसी काफले वालों में वो निशानियां नजर नहीं आई। तो फौरन राहिब को थोड़ा शक हुआ, तो उसने पूछा काफले वालों से कि आप लोगों के काफले के सब लोग आए हैं या कोई रह गया है? काफले वालों ने बताया कि हम तो सभी आ गए हैं, सिर्फ एक बच्चा हमने छोड़कर आए हैं, वो छोटा है, कम उम्र है, इसलिए हमने उसको साथ लाना जरूरी नहीं समझा। मगर बुहैरा राहिब ने कहा, आपको मालूम है मेरे कासिद ने क्या कहा था? हमारी एक शर्त थी कि कोई छोटा हो या बड़ा, दावत में कोई गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। काफले वालों ने कहा कि हाँ ठीक है। चुनांचे हुजूर के ताया जिनका नाम हारिस था, उन्होंने जाकर पड़ाव की जगह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आए। लेकिन बुहैरा राहिब ने देखा कि जब हुजूर आ रहे थे तो बादल साया किए हुए आपके साथ साथ चल रहा था। उसके बाद बुहैरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को घूर घूर के देखता रहा। बुहैरा राहिब को आपके अंदर वो सारी निशानियां नजर आ रही थी जो उन्होंने आसमानी किताबों में पढ़ी थी। जब सब लोग खाने से फारिग होकर जाने लगे तो बुहैरा राहिब जल्दी से हुजूर के पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आपको लात और उज्जा की कसम, ये उनके खुदाओं के नाम थे, उनकी कसम दी, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। जब बुहैरा राहिब ने लात और उज्जा की कसम दी जो मुशरिकीन के खुदा थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लात और उज्जा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो, मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा।
खुदा की कसम मुझे इनसे ज्यादा कोई नापसंद नहीं है। बुहेरा राहिब ने कहा कि चलिए आपको खुदा की कसम, लेकिन आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। जब आपको खुदा की कसम दी गई तो आपने बुहेरा राहिब को इजाजत दी। अब बुहेरा राहिब ने हुजूर से सारी बातें पूछनी शुरू की जो आपके जात के मुताल्लिक थी। बुहेरा राहिब ने आपके आदात, आपके मिजाज, आपकी रूटीन लाइफ, आपके सोने जागने उठने बैठने से मुताल्लिक सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुहेरा राहिब की सारी बातों का जवाब देते रहे। बुहेरा राहिब आपकी सारी जवाबात को सुनता, आपके आंसर को सुनता और आपके जवाब को और किताब में लिखी हुई बातों को मैच करता था और दिल में उस बात की तस्दीक करता था कि ये सही कह रहे हैं। बुहेरा राहिब ने जब आपकी मोहर नबूवत देखी जो आपके कंधों के बीच में थी, तो बुहेरा राहिब ने नबूवत की जियारत करते ही मोहर नबूवत को बोसा दिया। उसके बाद बुहेरा राहिब अबू तालिब के पास आए और पूछा अबू तालिब से कि ये बच्चा आपका कौन लगता है, कौन है ये? तो अबू तालिब ने जल्दी से कहा कि ये मेरा बेटा है। जब अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है तो बुहेरा राहिब कहने लगा, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि इनका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को तो बहुत हैरत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे भाई का बेटा है। बुहेरा राहिब ने पूछा कि इनके बाप का इंतकाल कब हुआ? तो अबू तालिब ने कहा कि उनका उसी वक्त इंतकाल हो गया था जब ये पेट में थे। तो बुहेरा राहिब ने पूछा कि इनकी मां का इंतकाल कब हुआ था? अबू तालिब ने कहा कि उनका इंतकाल भी उसी वक्त हो गया था जब इनकी उम्र 6 साल की थी। तब बुहेरा राहिब ने कहा कि आप सच कहते हो, आपका एक एक जुमला, एक एक बात सही है, 16 आने सच है। बस अब जल्दी से जाओ, अपने भतीजे को जल्दी से वापस अपने वतन पहुंचा दो और इसको हमेशा यहूदियों से बचाए रखना, वरना खुदा की कसम अगर इन पर यहूदियों की नजर पड़ गई और मेरी तरह उन्होंने भी इसको पहचान लिया तो इसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए कि तुम्हारा भतीजा कोई आम बच्चा नहीं है, ये निहायत अजीम और ऊंचे मर्तबे वाला है। और याद रखो, मैंने ये बात बताकर और ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर लिया है। अब जल्दी से इन्हें लेकर वापस अपने वतन चले जाओ अगर तुम इसकी खैरियत चाहते हो तो। बुहेरा राहिब की सारी बातें सुनकर चचा अबू तालिब को भी लगा कि बात तो सही है, बात में दम है, क्योंकि चचा अबू तालिब खुद भी देखते थे कि उनका भतीजा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी खूबियों का मालिक है। इसलिए वो समझ गए कि बुहेरा राहिब बिल्कुल सही और ठीक कह रहे हैं। इसलिए चचा अबू तालिब तिजारत के सफर के लिए आगे शाम नहीं गए, बल्कि उसी सरहदी गांव बुसरा से वापस मक्का लौट गए। मक्का लौटने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। मक्का वापस लौटने के बाद फिर क्या हुआ, वहां पर क्या अजीब अजीब वाकयात हुए, वो हम इंशाअल्लाह 9वें हिस्से में यानी 9वें पार्ट में सुनते हैं।